Everest, the tallest peak in the world, fraught with dangers at every step. This is one summit which is most sought after by all mountaineers. Mount Everest beckons climbers from all across the globe who undertake this risky journey to the top, putting their lives at stake, facing hazardous situations just for the glory of this magnificent summit. We have a guest with us this evening who has done just that. But before that, I want to welcome each one of you to today's episode of the Champot Adda, जहां हम करेंगे कुछ गपशप, कुछ गाना बजाना. So moving on, I want to introduce you to the performer for this evening. Rajdeep Mukherjee did his schooling from Jamshedpur's Kerala Samajam and DAV public schools. Thereon, he moved to Kolkata to do his economic honors. But his passion lay elsewhere. Music is his life, and he has won the prestigious Voice of Jharkhand Award, has participated in TVS Saregamapa's Lil Champs, and has been a finalist on Super Singer Star Jalsha. He has also performed in front of renowned artists like Asha Bhosle, Kumar Sanu, Sonu Nigam, amongst others, and is currently working with eminent musicians and composers of the Bengali industry. His music is a treat for the soul. So let's go and meet him. Hi Rajdeep, welcome. A very, very warm welcome. It's so good to have you with us here on the Jampot Adda. And I've heard your songs, and you're brilliant. So it's great to have you here, and I'm sure we are all looking forward to some great stuff from you today. Hello and welcome, and thank you so much for having me here. And it's a pleasure. It's always a pleasure being there and performing for the people of Jamshedpur. It's my place, and the people who belong to Jamshedpur. We all know like how special this place is. So it's always a pleasure, and I'm looking forward to having a great chat session and singing some songs for you. Lovely. So to begin with, first tell us at what age did you begin to learn music, and tell us some of the most special moments of your musical journey. Okay, yeah, I started to learn music when I was around like 10 or 11. Yeah, my mom started teaching me. We had a small harmonium in that place, and then my mother used to, play the notes. She learned music. She was telling me this is Sa, this is Re, this is Ga. So that's how I began at the age of 10 or 11. And then I sat in a competition also and won a third prize or second prize, something like that. And then like these things happened, and I went to my first guru, Mrs. Ruby Banerjee. She lives in Sonari right now. So from there, after my musical journey started, I started learning, and then after passing out from my school, when I came to Kolkata for graduations, then I started learning from Sri Joyanta Sarkar, my guru here in Kolkata. So this is how the journey started. To be honest, when I was a little kid, like even before 10, 11 years of age, I used to like sing. Like if we have any guests at that place, and my mom and dad were like, "Beta chalo gana sunao," then I used to take a powder case and stuff, and then make a mic with some papers, fold some papers and make a mic, and used to sing like that. So a lot of people used to tell, isko sikhao, let him join a class. Nice. So what are you singing for us first? Okay, the first song that I'm going to sing is it's a classic. It has become a classic now. So Hrithik Roshan's movie Agnipath, and it's like it's been a song which is like सबके ज़बान पे है वो गाना. So Right. it's a song. The song is called Abhi Mujh Mein Kahin. So Oh, I'll be singing that. nice. I'll start with that. Okay, great. Chalo. धूप में जलते हुए तन को छाया पेड़ की मिल गई,
रूठे बच्चे की हंसी जैसे फुसलाने से फिर खिल गई। कुछ ऐसा ही अब महसूस दिल को हो रहा है, बरसों के पुराने जख्म पे मरहम लगा सा है। कुछ ऐसी लगन इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने इसे छू लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा। खुशियाँ चूम लूं या रो लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा। अभी मुझ में नहीं, बाकी थोड़ी सी है जिंदगी। जगी धड़कन नहीं, जाना जिंदा हूँ मैं तो अभी। कुछ ऐसी लगन इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने इसे छू लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा। खुशियाँ चूम लूं या रो लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा। ओ मर जाऊं या जी लूं जरा। Wow, wow, that was brilliant. Brilliant. It's one of my favorite songs, and you've done such a fine job with it. Really amazing. Thank you. Thank you so much. So, Rajdeep, tell me, what is your favorite genre in music, and why? Okay, favorite genre. Well, I usually like, I've been into a show called Super Singer, where I sung, like, explored almost all kinds of genres. Like, I've done growling and I've done stuff which I never thought I would be able to do. So I've like explored everything, almost everything in that show. But to be honest, my favorite genre is ghazal or Sufi, these kind of songs. I sing Bollywood, I sing Bengali songs, I sing Rabindra Sangeet or Nazrul Geeti or like all kind of genres. But The entire the spectrum, yeah. the most preferred genre is ghazal because that's where I find real peace actually. Oh, wow. At your age, you're seeking peace is very impressive and unusual. We all need to seek some peace because the world has become so fast that we don't have time for even thinking about ourselves. So sometimes I just when I sing or when I listen to ghazals, I just you know dive into it and I get lost into it. I don't think about anything else. Okay, so let's move to your next song, and I believe there is a ghazal there, right? Yeah, there is a ghazal, and there is one number by Shafqat Amanat Ali. He's also one of my favorite singers, and some of his songs have been like golden. And one of his golden songs
and a ghazal by Ustad Mehdi Hasan Saab. One of my ghazal inspirations, my first ghazal inspiration, to be honest, the Mehdi Hasan Saab. So this is one classic Mehdi Hasan Saab's ghazal, Gulo Mein Rang Bhare, and with that we have another classic by Shafqat Amanat Ali, that's called Sawan Bhi To Jaye. Okay, great. तू जो नहीं तो ऐसे पिया हम जैसे सुनागना नैन तिहारी राह निहारे नैनन को तरसाओना मोरा सैया मुझसे बोले सावन बे तो जाए पिहरवा सावन बे तो जाए पिहरवा मन मोरा घबराए मन मोरा घबराए ऐसो गए परदेस पिया ऐसो गए परदेस पिया तुम जैसे सुनागना जैसे सुनागना मोरा सैया मुझसे बोले मोरा सैया मुझसे बोले मैं लाख जतन कर हारी लाख जतन कर हार रहे मोरा सैया मुझसे बोले मोरा सैया मुझसे बोले प्यार तुम्हें कितना करते हैं ओ प्यार तुम्हें कितना करते हैं प्यार तुम्हें कितना करते हैं तुम ये समझ नहीं पाओगे तुम ये समझ नहीं पाओगे जब हम ना होंगे तो फिरवा जब हम ना होंगे तो फिरवा बोलो क्या तब आओगे मोरा सैया मुझसे बोले मैं लाख जतन कर हारी लाख जतन कर हार रहे मोरा सैया मुझसे बोले मोरा सैया मुझसे बोले मोरा सैया मुझसे बोले ना कफस उदास है यारों सबस कुछ तो कहो कफस उदास
कुछ तो कहो, कहीं तो मेरे खुदा आज जिक्र चले, कहीं तो बहर खुदा आज जिक्र चले, चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले, चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले, गुलों में रंग भरे बादलों चले, गुलों में रंग भरे बादलों चले, गुलों में रंग भरे बादलों चले। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बहुत मजा आया. Really nice. Thank you so much. Really nice. It's time to meet our next guest. At 1:07 p.m. on 23rd May 1984, she created history by being the first Indian woman to summit the mighty Mount Everest at an altitude of over 29,000 feet, where the speed and the force of the winds can knock you off your feet, where the sheer altitude can cause severe sickness, where every breath is an effort, every move a challenge, and where one wrong step can prove fatal. An epitome of grit and determination, a symbol of women empowerment. Ladies and gentlemen, please join me in welcoming an inspiring woman, recipient of the Padma Shri, Padma Bhushan, and Arjuna Awards, and the first Indian woman on top of Mount Everest, Bachendri Pal. A very warm welcome, ma'am. आप जैमपॉट अड्डा पे आई एंड हमारा बहुत बड़ा privilege है that you're with us, a Padma Bhushan awardee, Arjuna Award recipient, and a woman who has created history for being the first Indian woman to summit Mount Everest. It's really an honor, and personally, for me, it's a fangirl moment. So I'm really honored. Thank you. ये बहुत long awaited program था, 2 महीने से शायद इंतजार कर रही थी. और या आई नो आप बहुत बिजी रहती हैं और आपने हमारे लिए समय निकाला एंड आपने कहा था जनवरी में आपसे मैं बात करूंगी एंड यू लिव्ड अप टू दैट एंड आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दैट. थैंक यू सो मच. थैंक यू. तो शुरू करते हैं. हम सब जो जैमपॉट अड्डा पे हैं, वी आर ऑल इमोशनली कनेक्टेड इन सम वे विथ जमशेदपुर. और आपका भी जमशेदपुर वर्ड ही एक दिल दिमाग में बहुत कुछ यादें लेके आती है, जगा देता है. जो लोग दूर है जमशेदपुर से. जी हाँ, मैं भी मुंबई में रहती हूँ एंड जो हमारे दर्शक हैं वो भी ऑल ओवर द वर्ल्ड स्कैटर्ड हैं, जमशेदपुर के भी हैं ऑफ कोर्स, बट हम सब या तो वहाँ बड़े हुए हैं या वी सम पीपल हैव वर्कड देयर फॉर सम टाइम. तो आपका 35 इयर्स का कनेक्शन रहा है विद टाटा स्टील एंड जमशेदपुर स्पेसिफिकली. तो ये नाता कैसे और कब शुरू हुआ? ये नाता तो बस मेरे लिए, एक मैं हमेशा बोलती हूँ कि पेरेंट्स के बाद मेरे लिए टाटा स्टील, और टाटा स्टील मीन्स जमशेदपुर. मैंने कहा पेरेंट्स के बाद टाटा स्टील है मेरे लिए, जो सच है. तो बहुत सारी यादें हैं 35 इयर्स, और पता भी नहीं चला. 35 इयर्स तो मेरे लिए जैसा 35 मंथ्स, क्योंकि एक के बाद एक टारगेट, एक के बाद एक लक्ष्य. कोई डल मोमेंट जिंदगी में नहीं. कुछ प्लानिंग करो, उसको एग्जीक्यूट करो और उससे सीखो, फिर दूसरा टारगेट बनाओ. तो कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ खत्म करूँ. और टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन एक पहला एक डिपार्टमेंट बना जो कि अनहर्ड इन एनी अदर कॉर्पोरेट
सेक्टर इन इंडिया, इवन अब्रॉड में भी शायद ऐसा फुल फ्लेजेड डिपार्टमेंट नहीं था। और टाटा स्टील ने वो डिपार्टमेंट क्रिएट किया जब मैंने एवरेस्ट क्लाइंब किया, और उसमें मुझे फुल्ली एम्पावर किया, बस करो जो तुमको करना है, प्लान करो, विमेन के लिए करो, यूथ के लिए करो, अंडर प्रिविलेज लोगों के लिए करो, और एक एडवेंचर कल्चर मुझे बनाना था। तो बस उसमें पता ही नहीं चला, मुझे तो डिमना के सारे जंगल, वहाँ के जो डिमना लेक है, उसके आसपास के पेड़ अभी भी विजुअलाइज करती हूँ। और डलमा का तो कोई भी रूट नहीं छोड़ा, हर रूट से गई हूँ। अभी भी मुझे ऐसा लगता है, मुझे दिख रहा है वहाँ पे कौन सा बोल्डर है, कौन सा पत्थर है, कौन सी स्टीप क्लाइंब है, कहाँ पे जरा फ्लैट है, कहाँ पे थोड़ा सुकून मिलता था चढ़ाई के बाद। एंड देन मोटरेबल रोड भी है ना डलमा में, आप लोग गए होंगे सब लोग। तो क्या बताऊं, मेरे तो रोम रोम में जमशेदपुर के सारे जो दूर दराज के एरिया है रिमोट, जहां मैं ट्रैकिंग करती थी, करवाती थी, वो सब एक स्ट्रगल का टाइम था। एक नया डिपार्टमेंट बनाया, उसको जस्टिफाई करना था और रीच आउट करना था टू द मासेस। एक एडवेंचर का एक कल्चर, एक परंपरा बनानी थी, और विमेन को एम्पावर करना था। जहां एक दिन मैं थी, वहां पर दूसरों को भी देखने का एक सपना था, और वो टाटा स्टील के सपोर्ट से काफी सपने मेरे सपनों के साथ साथ दूसरों के सपने भी साकार हुए हैं, मैं ये कह सकती हूँ। लेकिन आई थिंक आप टाटा स्टील से जुड़ी अबाउट अ ईयर बिफोर योर समिट, तो ये कैसे, मतलब ये टर्निंग पॉइंट था, या ये रिलेशनशिप डेवलप कैसे हुआ, बिल्ड कैसे हुआ, शुरुआत कैसे हुई रादर? ये हुआ था जब मैं माउंटेनियरिंग कर रही थी। मैंने पढ़ाई लिखाई की, एमए बीएड किया, एंड देन आई वाज सिटिंग एट होम वेटिंग फॉर सम गुड जॉब मैचिंग टू माय, मेरा जो जितना मैंने पढ़ाई किया था उसका मैचिंग, छोटे छोटे जॉब ऑफर मिलते थे। लेकिन मैंने कहा, जब इतना स्ट्रगल करके कुछ पढ़ाई की मैंने, तो उसी मैचिंग अगर जॉब मिलेगा तो ठीक है। तो वो जब वेट कर रही थी, तो एक साल में घर में थी, कुछ नहीं हो पाया। तो वो बहुत फ्रस्ट्रेशन का टाइम था, वो बहुत लोनली स्ट्रगल का टाइम था। और मेरा सिलेक्शन, तब सिलेक्शन कैंप भी चल रहे थे एवरेस्ट के लिए। फर्स्ट टाइम इंडियन वुमेन को एक अपॉर्चुनिटी, एक चैलेंज था कि एवरेस्ट की चोटी तक पहुंचना, क्योंकि इंडियन वुमेन से पहले जापान की पहली थी, देन चाइना, पोलैंड, जर्मनी, ये 4 वुमेन ऑलरेडी क्लाइम कर चुकी थी। और इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थी इंडिया की, और एक महिला होने के नाते, और उनका लव एंड ये भी था एडवेंचर के लिए, नेचर के लिए, और उनका एक सोच था कि इंडियन वुमेन को भी ये मौका दिया जाए। तो ये सिलेक्शन एक्सपीडिशन चल रहा था प्री एवरेस्ट इंडिया में। बट मैं तो बिल्कुल अनअवेयर अबाउट ऑल दिस थिंग्स, व्हाट इज हैपनिंग अराउंड, और एक गांव में। तो तभी मेरा एक माउंटेनियरिंग के लिए किसी ने मुझे मोटिवेट किया, और तो मैंने माउंटेनियरिंग कोर्स किया, और 1 साल करने के बाद ही मेरा एवरेस्ट के लिए सिलेक्शन प्री एवरेस्ट में हो गया था। तो वो चल रहा था बस, क्योंकि कुछ नहीं करना, घर में बैठे रहना, तो ये होता नहीं था। तो जब एक टारगेट बना, एक लक्ष्य बना एवरेस्ट का, तो मैंने अपना 100% दे करके, और वो उस समय लोगों की माइंडसेट बिल्कुल भी ये माउंटेनियरिंग स्पोर्ट एंड ऑल वो प्रायोरिटी भी नहीं थी, न तो मेरे घर वालों की, न लोगों की सोच में थी। और माउंटेनियरिंग तो दूर दूर तक भी लोगों में जागरूकता बिल्कुल भी नहीं थी। तो जब मैं प्रैक्टिस करती तो वो लोग लुक डाउन करते थे कि हम तो पहाड़ी हैं, बॉर्न माउंटेनियर। और फिर ये पहाड़ चढ़ रही हूँ, जो मैं प्रैक्टिस करती थी, बहुत प्रैक्टिस करती थी, बहुत बहुत मेहनत करती थी मैं। ये तो मुझे मेरे माँ पिताजी से मिला है कि मेहनत और ईमानदारी, हार्ड वर्क एंड ऑनेस्टी, ये 2 चीज वैल्यूज बहुत स्ट्रॉन्ग मिला है मेरे पेरेंट्स से। और टाटा स्टील ने वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जहां मैंने ये वैल्यूज प्रैक्टिस किया एंड अचीव किया, एक के बाद एक गोल। तो उसी दौरान की बात है, जब मैं बहुत एक लोनली स्ट्रगल हो रहा था, और पहाड़ चढ़ रही हूँ, पत्थर उठा के जाती थी पहाड़ में, प्रैक्टिस करती थी, मेरी फोकस एकदम फोकस, दुनिया से कोई मतलब नहीं है क्या सोचा। तो मेरी माँ दुखी होती थी कि लोग क्या सोच रहे होंगे, क्योंकि
पत्थर लेके पहाड़ चढ़ना और लकड़ी घास लेके आना। तो लोगों का सोच है कि लोग लुक डाउन करते हैं कि ये काम, मेरे लिए तो कोई काम छोटा बड़ा नहीं है। लोगों की सोच होती है छोटी बड़ी, मेरे लिए अभी भी कोई काम छोटा बड़ा नहीं है। वो तो एक जिम है नेचर का, पहाड़ में जाते हैं, चढ़ते हैं। वो अच्छी सोच थी मेरी, इसलिए मैं यहाँ हूँ। तो मैं माँ को बोलती थी चलो अब मैं क्या बताऊं किसी को एवरेस्ट क्या है और मैं क्या क्यों कर रही हूँ। वक्त आएगा तो शायद पता चल जाएगा। तो ये लोनली स्ट्रगल था बहुत। तो उसी दौरान में टाटा स्टील से ऑफर आया। ओके। वो तो देखिए, मैं यही कहती हूँ कि एवरेस्ट के विषय में लोगों को इतना मालूम नहीं था जितना टाटा के विषय में, तो दूर दराज में। और जब टाटा से ऑफर आया और मैंने ज्वाइन किया तो लोगों की आंखें खुल गई। लोगों ने कहा वाह ये क्या बात है भाई, टाटा में, टाटा स्टील से एक जॉब ऑफर। तो ये टर्निंग पॉइंट था और ये इसने लोगों के सोच में बदलाव ला दिया कि धीरे धीरे तो यहाँ से अच्छे दिन शुरू हुए। मेहनत तो मैं कर ही रही थी एवरेस्ट के लिए, और इन बिटवीन में जमशेदपुर में आई और वहां पे मैंने ज्वाइन किया। 3-4 दिन रही वहां पे, मेडिकल चेकअप एंड ऑल हुआ। और तब वहां पे जब डलमा और डिमना देखा तो मैंने कहा मैं यहाँ अकेली नहीं हूँ। ये नेचर और इतना सुंदर पहाड़ी रेंज, डलमा रेंज, और इतना ब्यूटीफुल डलमा लेक, वो डिमना लेक, ये मेरे लिए ना कंपेनियन जैसा था। मैं जैसा लग रहा मुझे हिमालय से मैं लेके गई हूँ, मेरे साथ साथ वहां पे आए। तो ऐसी शुरुआत हुई। और फिर मैं बता रही थी कि एक फुल फ्लेजेड डिपार्टमेंट बना, उसमें फुल्ली एम्पावर किया। बहुत सारे जॉब ऑफर थे एवरेस्ट के बाद, बहुत। वो चाहे एयर इंडिया हो या फिर ओएनजीसी है या सेंट्रल गवर्नमेंट है, तब यूपी गवर्नमेंट था। तो कुछ लोगों ने यूपी गवर्नमेंट में कुछ कैश अवार्ड दिया था, मुझे बुलाया गया था। तो उन्होंने कहा अरे व्हाट यू आर डूइंग इन बिहार, यू आर फ्रॉम यूपी एंड विल क्रिएट अ जॉब फॉर यू इन यूपी। मैंने कहा तब कहाँ थे सब लोग जब मैं कुछ नहीं थी। जब मैं कुछ नहीं थी उस समय टाटा स्टील था जो आगे आके एक रिस्क लिया। बिकॉज ये कोई गारंटी तो थी नहीं मैं पीक क्लाइम करूंगी। ये खासियत है, ये खूबी है जो मरते दम तक टाटा स्टील की जो लिए सोच है वो मेरे अंदर में रहेगा। और बस उसके बाद टाटा स्टील ज्वाइन किया तो मैं तो कहीं दूसरे जगह सोचने का तो कभी ख्याल भी नहीं आया। बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट, डायरेक्टर जनरल नेहरू युवा केंद्र बहुत था उसमें, वो भी गया था मेरा। लेकिन मेरे लिए टाटा स्टील से एंड टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन से बेहतर दुनिया में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कोई भी चीज नहीं है। वो स्ट्रॉन्ग फीलिंग हमेशा ही है, शुरुआत में था, लगातार था, अभी भी है, हमेशा रहेगा। Oh, that's so nice to hear because we also all feel very emotional about Jamshedpur and आपको भी वैसे ही लगता है। वो सुन के बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत इमोशनल हो जाती हूँ मैं। जिस घर में रही मैं 36 कैजुअल बेंगलोर में करीब 30 इयर्स, मैं बीच में जमशेदपुर गई और आई वाज रियली क्राइंग। मैं जो पे वहां का पेड़, वहां की मिट्टी, वहां का पत्थर, मैं बोलती रहूंगी तो शायद मैं बहुत इमोशनल हो जाऊंगी। I know it's a beautiful place. It's a place we call home. ऐसे है हमारे सबके लिए। तो आप 12 साल की थी मैम जब आपको पहले दफा द जॉय एंड थ्रिल ऑफ क्लाइंबिंग एक्सपीरियंस हुआ। एंड वहां से लेकर के दैट मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन दैट मेरा लक्ष्य है माउंट एवरेस्ट, वो जर्नी या वो सफर कैसा था? वो तो हमारा एक वे ऑफ लाइफ था, पिकनिक जाना, जंगलों में जाना, जंगलों से और मैं बहुत अच्छी स्पोर्ट्स पर्सन भी थी, अपने कॉलेज में गर्ल्स चैंपियन भी हुआ करती थी। तो ये सब कुछ में मेरा बहुत इंटरेस्ट था। पढ़ाई के अलावा घूमना फिरना, जंगलों में जाना, नेचर के साथ रहना, तो वो भी एक वैसे ही एक था। हम कुछ मेरे कजिन्स एंड मेरे कुछ फ्रेंड्स गांव के, तो हमने ये प्लान किया कि चलो हम कहीं चले जाते हैं जंगल में। ये गंगोत्री के पास की बात है, हरसिल एक जगह है वहां पे। और वहां पे जंगलों में ना कुछ बहुत अच्छे वाइल्ड वेजिटेबल्स भी होते हैं, लोग जाते हैं कलेक्ट करके आते हैं, बहुत अच्छे। तो वो ही हमारा भी एक प्लान था कि चलो हम भी जाते हैं, कुछ लेके आते हैं जंगल से। और गए हम लोग, कुछ पैक लंच लेके गए, रोटी पराठे जो भी बना के लेके गए, करीब 7-8 लोग, जिसमें मेरे बड़े भाई भी थे और भी थे। तो चलते चलते काफी हाइट में चले गए। ऑलरेडी
हरसिल तो 7,000 या 8,000 फीट पे है, उससे हम आगे चले गए करीब 10,000 11,000 फीट पे। और वहां पे हमको ग्लेशियर दिखा तो इतने एक्साइटेड हो गए, और वो बर्फ का चादर जैसा बिछा हुआ, स्नोफॉल होते हुए तो देखते थे, लेकिन ग्लेशियर देखना कि पूरा दूर दूर तक पूरा सफेद। I know. फिर हमने क्या किया, उसमें ग्लेशियर करना शुरू कर दिया। हम जो भी बैग वैग लेके गए थे कि हम सब्जी कुछ कलेक्ट करेंगे, और उसको हमने उसके ऊपर बैठ के एक दूसरे को खींच रहे हैं, स्लाइड कर रहे हैं टाइम का पता ही नहीं चला। जिस मकसद के लिए आए थे कि हम कुछ वेजिटेबल कलेक्ट करेंगे, वहां पे कुछ खास तरह के होते थे, वो उसकी याद नहीं रही, और बस लोग फन में लग गए। और उसके बाद फिर बहुत लेट हो गई। अब हमने सोचा अब जिस काम के लिए आए हम लोग किया नहीं है, और घर जाएंगे तो डांट पड़ेगी। डांट ऐसा करते हैं पड़ेगी। कि आज रात इधर ही रह जाते हैं। हो, और करीब 12,000 फीट पे, करीब 12,000 फीट पे, और रात रहने का हमने निर्णय लिया। और भाई लोगों ने, उन्होंने कुछ कुछ ब्रांचेस कलेक्ट ये करके, काट करके, और एक वो टेम्परेरी एक शेल्टर okay. वो बनाया, और खूब आग जला दी आगे में, ताकि वाइल्ड एनिमल ना Animals. आए, पास में नहीं आए। और क्योंकि खाने पीने का तो कुछ था नहीं, दिन में खा लिया था, और पीने का नहीं था, पानी नहीं था। उससे हमको डिहाइड्रेशन हो गया बहुत, किसी को वॉमिट हो गया, ऑल्टीट्यूड हाई ऑल्टीट्यूड तो था ही Altitude, था, जी। और डिहाइड्रेशन बहुत होता है। वहां पर वाटर वेपर कंटेंट ऑफ द एयर इज आल्सो वेरी पुअर, एंड चल रहे हैं तो वी आर ब्रीथिंग फास्टर, Right. completely wet air we are taking out, and वो ड्राई एयर ले रहे। इसका हमको नॉलेज ही नहीं था, कभी पढ़ा नहीं, और घर वालों ने बताया नहीं। तो फिर रात बहुत मुश्किल से गुजरी हमारी। पता चला कि रात में लोग, गांव से लोग ढूंढने भी आए थे कि सब वे इतना दूर दराज रिमोट जंगल में आइसोलेशन में कहाँ चले गए। तो दूर दूर से हमको विसिल की आवाज आ रही थी, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। कुछ लोगों की तबीयत खराब हो गई, और कहाँ सब्जी कलेक्ट करना दूसरे दिन, तो फिर किसी तरह थके हारे। डिहाइड्रेशन बहुत खराब होता है जी, खाने बिल्कुल। के बगैर तो आप। इसलिए उसका नॉलेज बाद में मुझे बहुत कुछ हुआ कि डिहाइड्रेशन होता क्या है, एंड किस तरह से हमारे सिस्टम अफेक्टेड होते हैं और हमारे। किस तरह से हाइड्रेट करना बहुत बहुत आवश्यक है हाँ, बहुत आवश्यक है, खासकर माउंटेन में तो बहुत माउंटेन ज्यादा। में। बिल्कुल। और तो प्यास इतनी फिर ज्यादा ठंड की वजह से प्यास कभी कभी लगती नहीं है, तो हाँ, याद, और यू हैव टू कीप इट इन माइंड एंड कीप सिपिंग या वाटर। यस। और प्यास कोई सिम्टम्स नहीं है डिहाइड्रेशन का ये राइट। जरूर सोचना चाहिए हमको। तो फिर सवेरे तो बिल्कुल इतने लेथार्जिक हो गए लोग, तो चल नहीं पा रहे, धक्के लग रहे हैं जैसे, क्योंकि विदाउट फूड तो यू कैन सर्वाइव फॉर मंथ्स, है ना। मंथ, 1 मंथ या 2 मंथ कहीं पढ़ा था मैंने, विदाउट वाटर। और तो 12 दिन मैक्सिमम सर्वाइव कर सकता है कोई इंसान। तो दूसरे दिन सवेरे सब्जी कलेक्ट करने का तो कोई ख्याल तक दूर दूर तक आया नहीं, हम नीचे उतरने लगे। किसी तरह से घर आए, हमने सोचा अब तो घर में बहुत खुश होंगे लोग कि हम, लेकिन खूब मार पड़ी सबको, क्योंकि ये एक बहुत ही मिस एडवेंचर था, एक दुस्साहस था हम लोगों का। और लेकिन मैंने बहुत कुछ लर्न किया तब से कि डिहाइड्रेशन क्या होता है, पानी पीना कितना जरूरी होता है, ऊपर में अल्ट्रावायलेट रेज कितना स्ट्रांग होता है, ऑल्टीट्यूड का इफेक्ट क्या क्या होता है। और तो एक लेसन भी था, और लेसन लेकिन बहुत हार्ड वे में मिला वो सब था। वो मैं बहुत घूमने जाना, पिकनिक में जाना, खुद खाना बनाना, ये चीज गांव में, गांव की जिंदगी सिखाती है ये इंडिपेंडेंट होना, हर काम में आगे आना, कुछ करना, डिसीजन लेना। मैं सोचती हूँ ये गांव में रह गया, एक पर्सनैलिटी शेप अप करती है गांव जी। का जो रहन सहन है, घर में काम करना पड़ता है, जिम्मेदारी लेनी पड़ती है, आपको क्या बनना है, क्या करना है, आप ही को सोचना है। तो ये पेरेंट्स तो पढ़े लिखे नहीं थे, जी। तो और उस टाइम पर ऐसा माहौल भी नहीं था गांव में कि जो जिनको हम बेंचमार्क करें, जिनको देखे हम, तो सब कुछ डिसीजन खुद ही लेना होता है, सब काम खुद ही को करना होता है। तो मैं सोचती हूँ आज जो भी हूँ, ये बचपन में मैंने जो भी किया, चाहे कोई खुरापात किया, और जो भी उससे मुझे बहुत सीखने को मिला जिंदगी मिला में। है। ओके। आपने एमए किया है संस्कृत में, और आपने बीएड किया है, एंड आई थिंक वन ऑफ द फर्स्ट एंड ओनली वुमेन हु इज सो एजुकेटेड फ्रॉम योर विलेज।
तो लेकिन time उसके उस sorry, टाइम पर उस टाइम पर, यस यस, उस टाइम पर अभी तो तो इतना होने के बावजूद आपने प्रोफेशनल क्लाइंबिंग करियर के लिए चूज किया, तो व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ योर पेरेंट्स और विलेजर्स? क्लाइंबिंग तो एक ऐसा क्लासरूम है जिसके वॉल नहीं है, एक क्लासरूम, वंडरफुल डायनेमिक क्लासरूम। एजुकेशन डजंट मीन ओनली इन द फोर वॉल्स जहाँ पे एसी लगा है, जहाँ पे लोग बिल्कुल ऐसे टिप टॉप होके जा रहे हैं और वो ओवरहेड प्रोजेक्ट से देख रहे हैं, ये कर रहे हैं। मेरे लिए तो ये इतना चमत्कारी क्लासरूम है, इतनी लर्निंग है, यू लर्न सो मच फ्रॉम द नेचर। एक जो लोग, ये तो हाईली एजुकेटेड लोगों का स्पोर्ट है। ये मेरे गांव वाले सोचते थे ये तो खच्चर ढोने वाले या गाय चुंगाने वालों का है, लेकिन ये स्पोर्ट तो इतने एडवांस कंट्रीज हैं, उनका स्पोर्ट है। हमारे देश में तो बहुत देर में आया, शुरू में तो लोग तपस्या करते थे, साधु लोग, उस तरीके से आया, लेकिन एज ए स्पोर्ट बहुत लेट से आया। और यही बात थी, मैंने इसीलिए माउंटेनियरिंग शुरू किया, क्योंकि जब मैं अनएम्प्लॉयड थी और घर में इंतजार कर रही थी जॉब का, उस टाइम पर एक रेनाउंड माउंटेनियर इंडिया का कर्नल प्रेमचंद, वो प्रिंसिपल थे नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग के भी, तो वो किसी वजह से मेरे गांव में उनका आना हुआ। और जब वो जा रहे थे तो तब मैं बैठी थी गांव में, अपने गांव के घर के बाहर में, तो जब मुझे मिले तो उनके साथ में एक और भी थे, तो बातचीत हुई और उनको बहुत हैरानी हुई कि एमए बीएड करके मैं घर में बैठी हूँ। उस टाइम पर गांव में कौन एमए बीएड होता था, अगल बगल के गांव में भी नहीं था। और उनको बहुत अच्छा लगा ये जान के, और फिर उन्होंने कहा कि तुम क्यों नहीं माउंटेनियरिंग कोर्स के लिए जाते हो, जो कि इंस्टीट्यूट हमारे यहाँ से करीब शायद वॉकिंग डिस्टेंस, यानी 10-15 किलोमीटर ही दूर था, जहाँ पे देश विदेश के लोग आते हैं माउंटेनियरिंग कोर्स के लिए। उनको हैरानी हुआ कि ये यहीं पर है लेकिन जाती नहीं है, क्योंकि वो सोच नहीं था ना, कि यही सोचते कि अच्छा ये पहाड़ चढ़ना तो अनपढ़ लोगों का काम है, हम अनपढ़ लोग ऐसे सोचते थे। तो वही सोच की वजह से मैं इतना देर में माउंटेनियरिंग हुआ हमारे गांव में या देश में, वो सोच ऐसा था। तो उन्होंने कहा तुम पढ़ी लिखी हो, ये पढ़े लिखों का स्पोर्ट है, जो पढ़े लिखे लोग हैं वही समझ सकते हैं कि एक पहाड़ क्यों चढ़ना चाहिए, and what all you learn by climbing a mountain, how you set your target and to achieve that target, कैसे आप छोटे छोटे टारगेट्स बना के जाते हैं। बोले ये तो जीता जागता क्लासरूम है, लेकिन ये सोच तो गांव वालों की नहीं थी ना, तो ये मुश्किल तो हुआ मेरे को। लेकिन बाद में एक बार जब मैंने ये शुरू किया, एक स्कूल है मेरे लिए तो, टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन, एक ऐसा वंडरफुल डायनामिक स्कूल जहाँ पे लोग आते हैं। फर्क यह है कि स्कूल में सीखते हैं बुकिश नॉलेज, लेकिन ये जो इस इंस्टीट्यूट में सीखते हैं दे लर्न बाय डूइंग, दे लर्न बाय एक्सपीरियंस, लीडरशिप क्या होती है एंड टीम वर्क क्या होता है, कैसे डेमोन्स्ट्रेट करते हैं लीडरशिप, द करेज, कॉन्फिडेंस एंड कम्युनिकेशन और तो ये लर्निंग का था। ये सबको नहीं पता होता था, गांव वालों को कैसे समझेंगे वो लोग, तो उनके सोच में था ये। लेकिन जब मैं टाटा स्टील में आई, जब इंजीनियर्स लोग या फिर मैनेजमेंट के ग्रेजुएट्स को लेके जाती थी, तो लोगों को लगता था ये तो पढ़े लिखे लोगों का स्पोर्ट है। और जब मैं दूर दराज में गांव में जाती थी तो कई लोग मिलते थे और बोलते थे कि दीदी आपने तो, आपका नाम तो बहुत बड़ा है, पूरे देश में नाम किया आपने, और लेकिन अभी आप टाटा में है, लेकिन अभी भी आप ये सामान उठा के क्यों जाते हैं। ये सोच है उन लोगों का कि ये रख से क्यों उठा के ले जा रहे हैं। कोई बोलता था हम उठा दें, उठा लेंगे, हाँ। तो उनको समझाने में मुझे वक्त लगता था कि ये करने के लिए कितने पैसे लोग देते हैं, कितने लोग विदेशों से आते हैं हिमालय को देखने और लिखते हैं, अपने एक्सपीरियंस लिखते हैं, हिमालय के विषय में लिखते हैं, लोकल कल्चर के विषय, द पीपल, द प्लेस। तो रूपा जी ये तो इतना वंडरफुल क्लासरूम है, इतना स्टनिंग। We learn so much about ourselves. We discover our hidden things, our hidden potential. मैं क्या हूँ, मैंने वो बुकिश एमए एंड बीएड तो मैंने एग्जाम पास करने के लिए किया, डिग्री है लोगों को बताने की मेरे पास ये डिग्री है, लेकिन जिंदगी जीने की जो कला, द कॉन्फिडेंस, करेज, डिटर्मिनेशन, सेटिंग गोल्स,
राइट। तो ये तो मैंने सब माउंटेनियरिंग से सीखा, ये पहाड़ों से सीखा मैंने। और पहाड़ों से एक आया कि एक जब भी मैं एक पहाड़ चढ़ती हूँ तो आई गेट न्यू लीज ऑफ लाइफ, एक कैन डू स्पिरिट आती है कि अरे वाह। मैं कर सकती हूँ। अभी मैं नाउ आई एम 67, अभी भी मैं जाती हूँ पहाड़ में तो मुझे हमेशा मुझे नया दिखता है पहाड़। हमने जब स्कूल में पढ़ते थे ना तब पढ़ते थे कि प्रकृति क्या कपड़े बदलती है, तो वो सच में ये तो लोग किताब में पढ़ते हैं ना, जब देखेंगे हम उसी प्रकृति में उसी जगह में आप अलग अलग सीजन में जाते हैं, अलग अलग रूप पत्तियों का स्पेक्टेक्युलर स्पेक्टेक्युलर सीन्स देखने मिलते, ब्रेथ टेकिंग। आई एग्री, मतलब मेस्मराइज हो जाए कोई, इतना सुंदर है नेचर। और तो ये चीज है, ये वो है, ये बताने में लोगों को टाइम लगा, लेकिन मैं जरूर ये सब शेयर करती थी, गांव वालों को बोलती थी। और एक टाइम ऐसा आया कि जब मैंने 1993 में एवरेस्ट एक्सपीडिशन लीड किया, इंडो नेपलीज जी। विमेन्स एवरेस्ट एक्सपीडिशन लीड किया, तो उस समय मेरे गांव से 2 लड़कियां थी उस टीम में, और उत्तरकाशी से टोटल मिला करके 5-6 लड़कियां थी। वो इसलिए नहीं कि मैंने कोई भेदभाव किया कि मैं उत्तरकाशी लड़कियों, वो मैं करती नहीं हूँ अपनी जिंदगी में, बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने दे वर कैपेबल, वो लोग Right. आगे आए। तो कहने का मतलब कि किसी को तो एक कदम आगे बढ़ाना ही पड़ेगा। मुझे वो सहना पड़ा जब गांव से निकले, किसी ने बोला अरे पहाड़ चढ़ के क्या करेगी, पहाड़ में पहाड़ चढ़ने से क्या मिलता है, इतना पढ़ाई लिखाई किया, अब देखो ये पहाड़ पत्थर लेके जोती है, घास लकड़ी लेके आती, ये पढ़े लिखे लोगों का काम थोड़ी नहीं है, ऐसा सोचते थे। मैं सोचती हूँ सोच बहुत बड़ी होना चाहिए, और ये इस तरीके के सोच से बाहर निकलना मेरे लिए एक शुरू में एक एवरेस्ट क्लाइंब करना जैसा था। लेकिन आई वाज वेरी डिटरमिन्ड नॉट टू गिव अप। ये मैं गिव अप करने वाली होती तो मैं हालात जो थे वो मैं शायद गिव अप कर लेती, लेकिन मैं तो बहुत जिद्दी कि बस मुझे करना है, जो करना है मुझे करना है, वो मैं मुझे मालूम है। मैं अपनी माँ को भी यही बोलती थी कि माँ लोगों को बोलने दो, अगर कोई बोलते है तेरी बेटी को तुमने इतना गरीबी हालत में पढ़ाया लिखाया और अब ये कर रही है, तो बोलने दो, मुझे मेहनत करने दो, शायद एक वक्त आएगा जब लोगों को पता। वक्त आया, लोग मेरे माँ पिताजी के पास आए, मेरे माँ पिताजी के पैर छूते थे लोग, बाहर से आते थे लोग, और वो जो सम्मान मेरे माँ पिताजी को मिला उससे बढ़कर कुछ नहीं है जिंदगी में। तो कोई भी चीज के लिए कुछ मुश्किल तो होती है और किसी को तो आगे निकलना ही पड़ेगा, रास्ता बनाना पड़ेगा औरों के लिए। जी। सो आप जब एक्सपेडिशन पे, माउंट एवरेस्ट एक्सपेडिशन पे निकली, तो 15 मई 1984 दैट नाइट वाज अ टर्निंग पॉइंट, क्योंकि disaster struck as you all lay sleeping in your tents, and that kind of changed the destiny of the team. उसके बारे में हमें कुछ बताइए। माउंटेनियरिंग तो बहुत ही हार्डकोर स्पोर्ट है, जहाँ पे रिस्क तो हर जगह है, एकदम हॉस्टाइल एनवायरनमेंट है। राइट। और ये इसीलिए लोगों की रिस्क टेकिंग एबिलिटी भी तभी बढ़ेगा जब हम रिस्क लेंगे। हर रिस्क से हम दूर जाएंगे तो फिर हम वही रहेंगे 4 वॉल के अंदर, बस बढ़िया ढंग से खाओ पियो रहो ये वो। तो ये हम सब प्रिपेयर्ड थे कि एवरेस्ट में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उस माइंडसेट के साथ गए थे, अच्छी ट्रेनिंग के साथ गए थे। आजकल तो लोगों के पास पैसा है तो लोग बाग निकल पड़ते हैं, लेकिन हमारे टाइम पर तो पैसा नहीं था, लेकिन हार्डवर्क बहुत था, बहुत मेहनत करके ट्रेनिंग। और जो अच्छी ट्रेनिंग होगी वही आपको स्टैंड करती है जो बुरे वक्त में भी। और अच्छा हमारा ये था, अच्छी ट्रेनिंग करके, और तो कहने का मतलब है कि हम प्रिपेयर्ड होके ही जाते हैं कि कुछ भी हो। तो वो एक हादसा हुआ था, वो करीब हुआ था 23,000 फीट अबव सी लेवल में। जी। वो हमारा था कैंप 3 में, कैंप 3। जी। जी हाँ। तो बेस कैंप होता है ना, बेस कैंप में हमारे सारे स्टोरेज होते हैं, सब कुछ, खाना पीना इक्विपमेंट्स। और बेस कैंप तो एक घर जैसा होता है, एक गांव जैसा होता है हमारे लिए। अब तो टाउन जैसा हो गया है, क्योंकि इतने सारे एक्सपीडिशंस, इतने सारे एक्सपीडिशंस होते हैं कि दूर दूर तक टेंट, पूरा ग्लेशियर में, खुम्बू ग्लेशियर में टेंट्स लगे हुए हैं। लेकिन हमारे टाइम पर सिर्फ हमारा ही एक्सपीडिशन था, इसलिए वो आइसोलेशन की फीलिंग भी बहुत बहुत ज्यादा होती थी, अकेलेपन का और ये सब कुछ। तो वो बेस कैंप होता है। बेस कैंप के बाद हम फिर एक एक टीम करके आगे जाते हैं, रूट ओपन करते हैं, वापस आते हैं, एक्लिमेटाइजेशन होता है, करके वापस। राइट। हाँ,
टू गेट यूज्ड टू ऑफ दैट न्यू कंडीशन। Altitude. अब हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सबसे ज्यादा अफेक्टेड होता है। एलिमेंट्री सिस्टम, नर्वस सिस्टम, डाउन टू द माइन्यूट सेल्स अंडरगो सर्टेन ऑल्टरनेशन इन देयर फंक्शन एंड स्टार्ट वर्किंग एट अ डिफरेंट लेवल। तो इसके लिए बहुत वक्त देना पड़ता है। इसमें भी लोगों को जानकारी नहीं होती, बोलते हैं अरे 3 महीने कैसे लग जाते हैं एवरेस्ट क्लाइंब करने के लिए। I know. खैर वो तो इतना दूर जगह सबको मालूम कैसे हो सकता है। तो ये था। तो फिर उसके बाद बेस कैंप के बाद फिर कैंप 1, 2, 3, 4, हमारे टाइम पर 4-5 कैंप्स लगते थे। तो ये 3rd कैंप में हुआ था और उस दिन बुद्ध पूर्णिमा था। तो हम लोग वहां पे माउंटेन में करते हैं कि जल्दी से शाम को बहुत जल्दी खाते पीते हैं और सबसे पहले तो पानी गर्म करते हैं, फ्लास्क में पानी, क्योंकि जल ही जीवन है वहां पे। तो जी. खाना तो लॉस ऑफ एपिटाइट बहुत होता है और बस पानी पियो और लिक्विड फॉर्म में आप कुछ भी लो, चाहे पॉरिज लो, पानी लो, जूस लो, चाय लो, बस पीते रहो कुछ न कुछ। तो वो सब करते हैं हम सबसे पहले। एंड देन दूसरे दिन अर्ली मॉर्निंग क्लाइंब करना शुरू करते हैं। अर्ली मॉर्निंग इसलिए कि उस समय विंड एंड ऑल मौसम ज्यादा अच्छा होता है और जी. दोपहर में फिर कभी कभी मौसम बहुत विंड बहुत ज्यादा चलने लगती है। और तो रात को हमने वही किया था, सारे मैंने फ्लास्क में अपने पानी वानी भर लिए, जल्दी से खा के सो गए। और करीब ये 12:30 बजे के बाद है जब बहुत जोर की मैंने ब्लास्ट की जैसी आवाज सुनी और मुझे लगा कि ये क्या हुआ, ये तो शायद कोई ऑक्सीजन सिलेंडर फट गया है या कुछ लाइक दैट। तो थोड़ी देर में लगा मैं भारी चीज के नीचे दब गई हूँ और तब लगा ओ माय गॉड, मैं तो एवलांच के नीचे दब गई हूँ, ये तो बर्फ का टूट के आया है मेरे बॉडी के ऊपर। और उस समय बस यही लगा कि मैं मर रही हूँ, मैं मर रही हूँ। और ये कैसी मौत है जब मुझे खुद पता चल रहा है कि मुझे मरना है थोड़ी देर में, बस इतना ही। न पेरेंट्स की ख्याल न भगवान का ख्याल। लोग बोलते हैं जब मुश्किल में होते हैं तो माँ बाप याद आते हैं, भगवान के याद आते हैं, लेकिन उस टाइम पर मैं यही सोच रही थी कि बस मैं आई एम गोइंग टू डाई बहुत जल्दी। तो तभी लगा कि मेरे टेंट में मेरा एक क्लाइंबिंग पार्टनर भी थे और वो अपनी जगह से हिलने की कोशिश कर रहा था। तब एक जीने की उम्मीद आई, जीने की आशा आई और उन्होंने खुद बाहर निकले। टेंट का मटेरियल बहुत स्ट्रांग होता है क्योंकि 150 किलोमीटर पर आवर तो वहाँ विंड स्पीड होती है ऊपर में। तो उसके हिसाब से टेंट का मटेरियल है बहुत स्ट्रांग होता है, नायलॉन का, हाथ से फटता भी नहीं है। वो तो लकीली उसके पास नाइफ था, स्विस नाइफ, उसने टेंट को फाड़ा, खुद बाहर निकला और मुझे खींचा। तब जीने की इतनी ये थी कि मैं सोच रही थी मैं कब बाहर निकलूं। अपने हाथ से खुद स्नो के छोटे छोटे ब्लॉक्स मेरे ऊपर था उसको हटा रही थी। खैर उसने खींच करके मुझे बाहर निकाला और बाहर का बहुत ही पेनफुल नजारा था। अब बाकी जो साथी लोग थे वो रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, माँ माँ करके चिल्ला रहे थे। और जब बाहर निकले, बुद्ध पूर्णिमा था लेकिन एकदम ब्राइट, स्नो में रिफ्लेक्शन से और ज्यादा होता है ना उजाला, एकदम रात बहुत उजाला होता है बर्फ में। तो मैं बाहर निकली और देखा बहुत बुरे हालत में सब लोग और पता चला एक रिब ब्रोकन है, एक हेड इंजरी है, नी फ्रैक्चर है, बहुत बुरे थे। और कुछ कुछ लोग ठीक थे जो शेरपास थे, लेकिन शॉक्ड, सब लोग सदमा में कि ये एक नया जिंदगी मिला था। भगवान का शुक्र था कि कोई मरा नहीं उसमें। और कोई भी वो एवलांच वाला सीन देखकर कोई सोच नहीं सकता कि इसमें सब लोग बच गए थे। और एक टेंट था छोटा सा, वो सेफ था, लेकिन उसमें कोई सोया नहीं था। Okay. और उसमें हमारे किचन के कुछ सामान थे और वही एक ठीक था, बाकी सारे कोलैप्स हो चुके थे। तो मुझे वहां से उन्होंने उस टेंट के अंदर बैठने के लिए कहा और मैंने फिर सबके लिए कुछ चाय वाय बनाई और हॉट ड्रिंक्स बनाए और मेरे पाउच में कुछ पेन किलर्स थे वो मैंने अपने साथियों को दिया। और जो लोअर कैंप में हमारे दूसरे लोग थे, सपोर्ट टीम, ये तो टीम वर्क है ना, ये टीम के वजह बगैर तो कुछ भी अचीव नहीं होता है। मैं भी आज हूँ इस लायक कि मैं लोगों के सामने बात करता हूँ, इट्स नॉट ओनली बिकॉज ऑफ मी, इट वाज द होल टीम वाज बिहाइंड मी। उनका सपोर्ट, उनके बेस्ट विशेस, उनकी ब्लेसिंग्स, ये सब कुछ। तो नीचे लोअर कैंप में जो साथी लोग थे उनको वॉकी टॉकी सेट होता था। आजकल तो लोगों के पास वो सैटेलाइट फोन एंड ऑल है, उस टाइम तो हर चीज कंस्ट्रेंट था हर चीज, और इसलिए सेंस ऑफ अचीवमेंट भी बहुत ज्यादा था। तो उनको तो रात को 1 बजे वहां से रेस्क्यू के लिए चले और 70 डिग्री का जो स्लोप था, कैन यू इमेजिन, और बिल्कुल आइस में
अपनी जान को जोखिम में डाल करके हम लोगों की जान को बचाने के लिए ऊपर आए, और वो 1 बजे चले और 5 बजे सवेरे पहुंचे। तो फिर सब लोग नीचे उतरे, नीचे में हमारे लीडर थे लोअर कैंप में, कैंप 2 में, वहां उतरे हम लोग, किसी को स्ट्रेचर बना के और स्लाइड करके, क्योंकि 70 डिग्री का जो स्लोप है उसमें कैसे आप उठा के लाएंगे, उसको रस्सी से कितना मेहनत करना पड़ा सबको, हाँ। स्लाइड कर करके नीचे उतारा गया, और फिर वो बाद में बेस कैंप से चॉपर से काठमांडू ट्रीटमेंट के लिए। तो जब कैंप 2 में हम पहुंचे, अपने लीडर हमारे कर्नल खुल्लर थे, तो उनसे जब सब लोग बैठे, बात हुई, तो उन्होंने 1 बाय 1 सबसे पूछा कि जो लोग शॉक्ड थे, जो लोग इंजर्ड नहीं थे, जो लोग इंजर्ड थे उनको तो जाना था नीचे, और मैं तब किसी का एक शेरपा का फर्स्ट एड कर रही थी। तो फिर हमारे लीडर ने 1 बाय 1 सारे लोगों से, जो पोर्टर्स थे, उनको पूछा शेरपास, तो उन्होंने कहा नहीं, हम तो वापस जाना चाहेंगे। तो डिसाइड किया कि वी वांट टू गो बैक टू बेस कैंप। और उसके बाद जब मेरा टर्न आया, मैंने तो सर गिवन अपॉर्चुनिटी मैं जरूर, सर मौका मिलेगा तो मैं जरूर, एंड वो जरूर में अंदर से एक पावर थी, एक सोच थी, एक ये था कि मैं जब यहाँ से बच गई हूँ तो मैं ऊपर के लिए ही, ये सोच आया। और फिर ये भी सोचा कि मेरे पेरेंट्स कहते थे कोई बुरा होता था तो कहते थे अब चलो बुरा ग्रह टल गया है, अब कुछ अच्छा होगा। अच्छा होगा। कितनी अच्छी बात है ना, ये कितना पॉजिटिव Yes, रहना absolutely. सिखाती है। तो मुझे अपने माँ बाप को याद है, हाँ ये बुरा ग्रह सही में टल गया, अब कुछ अच्छा होने वाला, नहीं तो मैं मर जाती, इतने मौत के मुंह से बाहर मुझे निकाला गया खींच के। और बस फिर क्या था, दैट वाज द टर्निंग पॉइंट, वो डिसीजन लेना, वो मेरा सक्सेस स्टोरी का एक ये था। और फिर एक नई टीम बनी, तो दोबारा हम गए, उसी जगह में रहे जहां पर एक बार मौत से निकली थी। डरी तो बहुत थी, और जैसे जैसे रात होती है तो बुरे ख्याल और फिर वो यादें आती है, लेकिन मैंने किसी से शेयर नहीं किया। और बाद में मैंने पढ़ा कि एक लीडर वही है, डर तो सबको लगती है, एक लीडर है जिसके अंदर टॉलरेंस है, पेशेंस है, जो अपने डर से दूसरों को नहीं डराता है। वो लेसन मेरे लिए मिला वहां से, और वो जो मैं अभी भी प्रैक्टिस करती हूँ, और मैं अपने टीम में सबको यही बोलती हूँ कि भाई डर सबको लगता है, थकान सबको लगती है, परेशानी सबको होती है। एक लीडर वो है जो वो टॉलरेंस पेशेंस करके रखता है, न कि उसको सबके सामने अनाउंस कर देता है मैं मर गया, मैं डर गया, मैं नहीं चल सकता, मुझे दर्द हो रहा है। तो वही मैं अपने शेयर करती हूँ, जो भी मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स आते हैं उनको मैं कहती हूँ, बी ए लीडर, हैव द टॉलरेंस, पेशेंस एंड कीप गोइंग वाला स्पिरिट। तो हर चीज से एक लेसन, और बहुत बहुत ऐसा लेसन मिलता है पहाड़ों से जो आप जिंदगी भर नहीं भूल सकते हैं। तो फिर रात बीत गई। इस हादसे की वजह से मैम, you were the only woman on the team left who was going to continue climbing. तो मेरे से पहले और विमेन लोग ने भी ट्राई किया था, एंड दे आल्सो वेंट अप टू सर्टेन हाइट, काफी ऊंचे तक गए थे वो लोग, लेकिन इट्स लाइक ए पिरामिड ना, राइट, सक्सेस सब लोग कोई ना आखिर में ऐसा ही होता है कि भाई बहुत ही कम लोग एकदम ऊपर में तक पहुंच सकते हैं, लेकिन सब लोगों का प्रयास होता है। लेकिन प्रॉब्लम्स बहुत होते हैं, कई तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं, बहुत तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं, एंड कुछ भी अनएक्सपेक्टेड किसी भी मोमेंट पे हो सकता है, फॉर व्हिच यू मे नॉट, एंड पर्टिकुलरली you live by hours, you live by hours, and every step, I think every step is, अब नेक्स्ट मोमेंट क्या होगा कुछ पता नहीं है, नेक्स्ट मोमेंट क्या हो जाएगा कुछ पता नहीं है। अनसर्टेनिटी का जो टेस्ट है ना, वो आप माउंटेन में जाएंगे तो तब अनसर्टेनिटी सब जगह है, बिजनेस में है, हर जगह है, लेकिन वो प्रैक्टिस वहां जो करके आएंगे ना, वो उनमें वो फीलिंग होगी, वो बहुत। एंड वो आई थिंक एक एडिक्शन या इंटॉक्सिकेशन भी हो जाता है, एक बार जाके आओ तो यू जस्ट वांट टू गो बैक एंड कीप गोइंग बैक। इट्स like you said, इतने सारे experiences, इतनी beauty, you get to see all of that and you just want to keep on experiencing it again and again. उसमें जो मजा आता है ना, जब वापस आके लगता है लाइफ में क्या प्रॉब्लम है, कुछ भी नहीं है, लोग क्यों रोते रहते हैं, क्यों लोग छोटी छोटी चीजों से ये चीजें आती है। अब मैं जब चली जाती हूँ, कंफर्ट में रहती हूँ, अब फिर माउंटेन में जाती हूँ, एक टेंट में रहना और कितने कंस्टेंट में रहना, चलना, थकान है, फिर खाना भी बनाओ या कोई बनाने वाले हैं, जानबूझ के कंस्ट्रेंट में जाते हैं, चलते हैं,
वापस आते हैं तो एक गाड़ी तो हेलीकॉप्टर जैसा लगता है, और मिनिमम फैसिलिटी में रहना इतना मजा आता है, और लगता है सब कुछ है मेरे पास। Yes, yes. हाँ, A तो वो बहुत जरूरी है। simplicity but a sense of fulfillment बहुत ज्यादा यस, हाँ। आता है वहाँ। और वो लिमिटेड रिसोर्सेज में खुश रहना, जीने, न कि कंपेयर करते रहना लोगों से कि उसके पास ये है, मेरे पास ये है। तो वो फीलिंग आती है, वो सोच आती है, अरे मेरे पास जो है वो किसी के पास नहीं है। वो सोच है, वो करेज है, वो कॉन्फिडेंस है, वो एडेप्टेबिलिटी है। तो जी। ये इसलिए लोग बाग जाते हैं, स्पोर्टिंग वे में करते हैं, सीख के आते हैं, डे टू डे की जिंदगी में सर उठा के जीते हैं। मुझे तो ये लगता है, मैंने तो यही सीखा है। तो इतनी डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस या सिचुएशन, आप इतने हाई ऑल्टीट्यूड पे, ऑक्सीजन कम, winds blowing at 100 kilometers, 200 kilometers, ठंड, biting cold, -30, -40 degrees, vertical sheets of ice, moving glaciers, इतना सारा आप क्रॉस करके जब आप you were standing on top of Mount Everest, creating history, what were you thinking? How to get back safely. वाकई में क्योंकि इतना एक एक स्टेप, लाइफ एंड डेथ सिचुएशन से आप जा रहे हैं। तो मेरा एक्सपीरियंस तो कुछ दूसरे तरह का भी रहा था, तो इसलिए मेरे अंदर में और भी ज्यादा कि मैं सेफली पहुंचूंगी, क्योंकि उस टाइम, अभी तो पूरे एवरेस्ट के टॉप तक रोप फिक्स है जी। हमारे टाइम पर 80s में रोप फिक्स नहीं होता था, और जो टीम जाते थे वो रोप अप होते थे, आपस में रोप अप होते थे एंड हेल्प करते थे एक दूसरे को। लेकिन कभी ये होता था कि एक आदमी अगर स्लाइड हो गया तो पूरा का पूरा टीम का साथ भी होता था। हाँ, तो ये सब होता था। और मेरे केस में तो हम तो विदाउट रोप अप गए, वो इसलिए कि उस समय तो एक बहुत क्या बताएं मैं, एक बहुत ही बैड एक्सपीरियंस वहां पे हुआ था। ये क्योंकि माउंटेनिंग स्पोर्ट पूरा बहुत ही मेल डोमिनेटेड था उस टाइम। शुरू में तो आर्मी डोमिनेटेड थे, डिफेंस था, उसके बाद सिविलियंस में आया तो सिविलियंस जो पुरुष लोग हैं, मेल, वो सोचने लगे ये तो हमारा ही जागीर है, विमेन लोग तो कहाँ स्टैंड करते हैं। और ये चीज में याद आती है, जब एवरेस्ट के लिए मैंने पढ़ा था कहीं, जब एवरेस्ट का शुरू में ब्रिटिश लोग कर रहे थे इसकी तैयारी, तो ब्रिटिश लोगों ने एक टीम बनाई थी, एवरेस्ट एक टीम कुछ बनाई थी उन्होंने लंदन में। तो उन्होंने एक सर्कुलर निकाला था कि कौन लोग हैं जो विलिंग है एवरेस्ट जाने के लिए, तो ट्राई करना चाहते हैं। तो उसमें एक महिला ने भी किया, और उन्होंने उसको इतना लताड़ दिया, बोलता हाउ कैन ए वुमेन डेयर फॉर एवरेस्ट। मैंने ये पढ़ा है यार, कि एक महिला होने के नाते वो कैसे, उन्होंने उसी समय उसको रिजेक्ट कर दिया, उसका एप्लीकेशन को। तो ये हाल है, ये हिस्ट्री है, ये ऐसे से निकल के आए हैं हम लोग किस तरह। तो वो उस समय भी मेरे साथ एक बहुत खराब मेरा एक एक्सपीरियंस हुआ कि कुछ लोग ऐसा सोचते थे। एनीवे, इसका एक लंबी कहानी है। तो उस उधेड़-बुन में, वो सोच में मुझे विदाउट रोप अप चढ़ना पड़ा था। Oh my God. मेरे साथ में एक शेरपा थे, और विदाउट रोप अप हम चढ़े, तो वो तो बहुत ही था। मतलब आप इतने एक्सपोज रहे कि थोड़ा कुछ होने से आप Yes, चले जाएंगे। हाँ, exactly. हाँ, अभी ठीक है। हाँ, हाँ, तो ये था कि आप बस अकेले हैं, और कुछ भी हो जाने से कोई कुछ नहीं कर सकता। and it's a big drop. एक one step इधर का उधर, and it's such a sheer fall. So और रास्ते में डेड बॉडीज दिखते थे, तो ऐसा लगता है कि वन स्टेप रॉन्ग मीन्स कि हमारी हालत भी ऐसी हो सकती है। तो ये डर था। तो जब आप टॉप में पहुंचते हैं तो ये भूलते थोड़ी है। और तब ये था कि मैं वापस क्या सही सलामत होंगी। मेरे केस में मैं तो बहुत थी डरी हुई थी, और हमेशा सोच रही थी पता नहीं मैं वापस सही सलामत पहुंचूंगी भी या नहीं। मैं दुर्गा की मूर्ति लेके गई थी, हनुमान चालीसा थी, मेरे माँ ने दिया था दुर्गा की मूर्ति, घर में पूजा करके उन्होंने दिया था, और हनुमान चालीसा वो मैंने ऊपर में प्लेस किया टॉप में, और मैंने माथा टेका, अपने पेरेंट्स को मैंने सबसे पहले याद किया, और फिर वो इमेज जो दुर्गा की थी वहां पर प्लेस किया, आपस में कॉन्ग्रेचुलेट किया एक दूसरे को। लेकिन अपर मोस्ट इन माइंड हमेशा यही था कि सही सलामत
वापसी होगा। जैसे मैं यहाँ से नीचे जाना शुरू करूंगी तो क्या कंडीशन होगी स्नो की, क्योंकि जब सवेरे में तो हार्ड कंडीशन हार्ड था। रहता है। यस। हाँ, और बार बार वो किक करके और आइसेक्स लगा के चलना पड़ता था, तो वो डर बहुत था। इसलिए ऊपर में पहुंच के वो खुशी तो बिल्कुल भी ये नहीं था, मैंने मैंने बहुत कुछ कर लिया, बिल्कुल भी नहीं था। वो खुशी तो बाद में रियलाइज किया लोगों ने धीरे धीरे। तो बस, और लेकिन फिट थे, बहुत फिट, बहुत फिट, वो सब लोगों ने अप्रिशिएट किया। और तब ये नहीं कि मेन एंड विमेन ऐसी कोई बात नहीं थी। और इनफैक्ट ये माउंटेनियरिंग में ना, अगर विमेन लोग, अगर इफ इट इज ए मिक्स्ड एक्सपीडिशन और लड़कियां बहुत फिट है और आगे आ रहे हैं, तो वो भी कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता। लोगों नहीं का लगता है। मेल ईगो हर्ट होता है। तो अगर आप स्मार्ट हैं, आप फिट हैं, आप ये हैं और आप इनिशिएटिव ले रहे हैं, कुछ और रिस्क ले रहे हैं, तो वो भी मेरे साथ ऐसा हुआ था। वो 26,000 फीट में, जिसकी वजह से मुझे विदाउट रूट पर जाना पड़ा था, कि लोगों के मेल ईगो बहुत हर्ट हुआ और उन्होंने कहा ठीक है हम आपके साथ नहीं जाते हैं, मुकाबला। तो ये प्रॉब्लम था। और क्योंकि ये सब प्रॉब्लम फेस करके कुछ अचीव किया, तो अचीवमेंट मैं सोचती मेरा सबसे बड़ा अचीवमेंट है। जितने तकलीफ है, जितना स्ट्रगल है, जितनी हार्डशिप है, जितना रिस्क है, The उतना success ये is उस sweeter. अचीवमेंट का फिर वैल्यू उतनी ही बढ़ नहीं जाती है। ज्यादा। जी, Success tastes even sweeter then. हाँ, या तो एज अ वुमन आपको आई एम श्योर बहुत सारी अड़चने आई होंगी, बाधाएं आई होंगी आपके रास्ते में। तो एज अ वुमन आपको क्या 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 चीजों का सामना करना पड़ा? यही सोच, लोगों का माइंडसेट, लोगों का सोच की नहीं, विमेन लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, दे आर यू नो बहुत फ्रजाइल होते हैं, टिमिड हैं, ये नहीं कर सकते, वो नहीं करते। वो सोच को लेकिन हमने बदला। और जब मैंने खुद एवरेस्ट क्लाइंब कर लिया, उसके बाद टाटा स्टील ने जब एक टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन बनाया और मुझे एम्पावर किया, तो मैं लगातार उस सोच को बदलने का अभियान मैंने शुरू कर दिया। मैंने अपने लिए नहीं सोचा कि मैं ये क्लाइंब करूंगी, वो क्लाइंब करूंगी, ये वो मेरा कोई प्रायोरिटी नहीं था। मेरी प्रायोरिटी थी लीडरशिप। मुझे लीडरशिप देना, नेतृत्व करना है और दूसरी महिलाओं को भी आगे बढ़ाना है। और उस जगह में जहां मैं खड़ी थी, वहां पे दूसरी महिलाएं भी खड़ी होने में मुझे सपोर्ट करना है। और वो मेरा कंटिन्यूअसली रहा। मैं 1993 में देश से मेरा एक सपना था कि मैं एक ऑल विमेन एक्सपीडिशन लेके जाऊंगी, और लेके गई 1993 में। और गवर्नमेंट ने स्पॉन्सर किया और टाटा स्टील ने मुझे 6 महीने कंपनी बिजनेस में रिलीज किया। देखिए, सीवी में 6 महीने। जब दिल्ली में मैं वहां पे मुझे 5 स्टार होटल और ऑल, मैंने कहा मैं वहां इतने 3 महीने दिल्ली में थी और उन्होंने कहा वहां पे रहने के लिए, तो वो मेरे लिए बहुत मुश्किल टाइम था। और वहां से मैंने निकल करके मैंने कहा नहीं, मैं तो कोई डॉर्मेट्री में रहूंगी, ऐसे कैसे होता है कि 5 स्टार होटल में और इतने समय के लिए। बट वो ये सोच बहुत था कि मिनिमम में आप कुछ मिनिमम करके आप अचीव करो कुछ। तो उन लड़कियों को ट्रेन किया, 3 साल तक उनको ट्रेन किया। फिर एवरेस्ट में उन्होंने भी एक्सेल किया और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। डिक्की डोलमा 19 साल की थी, उसने क्लाइंब किया, यंगेस्ट का ये किया। और संतोष यादव ने 2 बार क्लाइंब करके पहली महिला पूरे वर्ल्ड की थी जिसने 2 बार क्लाइंब किया। 18 लोगों ने मेरी लीडरशिप में क्लाइंब किया। वाओ। 18 लोग ने, जो अभी भी वर्ल्ड रिकॉर्ड है। एक सिंगल एक्सपीडिशन से 18 लोगों ने क्लाइंब किया एंड सेफली वापस आए। रिटर्न्ड। हाँ, फिर मैंने ट्रांस हिमालय किया, फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश टू सियाचिन। वी वर द फर्स्ट सिविलियन, डिफेंस ने हमको अलाउ किया, क्योंकि सियाचिन में सिविलियंस को अलाउ नहीं करते हैं। और ये हमारे एक इतना बड़ा प्लान था, एक ट्रांस हिमालय का। डिफेंस ने भी कहा कि हाँ ठीक है मैडम, आप लोग जाइए, आप लोगों का प्रेजेंस जो है हमारे सोल्जर को भी उनको भी हौसला अफजाई करेगा। लेकिन सियाचिन में जाके हमने देखा कि हम तो जिंदगी में एक एवरेस्ट क्लाइंब किया, ये लोग तो हर दिन एवरेस्ट क्लाइंब कर रहे हैं। तो ये ट्रांस हिमालय एक्सपीडिशन वर्ल्ड का पहला सक्सेसफुल एक्सपीडिशन है, जिन्होंने करीब 4,500 किलोमीटर हमने कवर किया, ऑल विमेन टीम। उसके बाद मैंने कई कैमल सफारी किया, फ्रॉम गुजरात टू वाघा बॉर्डर, एंड राफ्टिंग फ्रॉम हरिद्वार टू कलकत्ता। जी। पीछे मुड़ के नहीं देखा और कभी अपने पुराने
अचीवमेंट को ग्लोरीफाई करते रहो, किसके पास है टाइम वो करने का। और मैं ये कभी नहीं चाहती थी कि लोग मुझे याद करें फर्स्ट इंडियन वुमेन हु क्लाइम्ड एवरेस्ट। मैंने उसके बाद, मेरा एक्चुअल एवरेस्ट तो उसके बाद शुरू हुआ। शुरू हुआ। वो मैं मासेस तक पहुंची और इतने लोगों को, चाहे वो बच्चे हो, अंडर प्रिविलेज हो, कोई भी हो। एक नाम सुना होगा आपने, अरुणिमा सिन्हा। जी बिल्कुल। हाँ, तो उसको ट्रेन किया और टाटा स्टील ने उसको स्पॉन्सर वेरी किया। इंस्पायरिंग स्टोरी, उनकी भी स्टोरी हाँ, कितनी इंस्पायरिंग है। हाँ, और टाटा स्टील ने उसको स्पॉन्सर किया और टाटा स्टील में ही 10 लोगों ने एवरेस्ट क्लाइम किया। ऐसे कौन सी कंपनी है दुनिया में, कोई नहीं है जहाँ पे ये अपॉर्चुनिटी है, जहाँ पे ये सब कुछ है और इतना कैन डू स्पिरिट है और ये करते हैं। तो आई रियली फील सो प्राउड। so much foresight, so much foresight कि विजनरी लीडर्स। और absolutely उन्होंने एक बचेंद्री पाल को एम्पावर करके कितने लोगों की जिंदगी को बदल दिया, कितने लोगों का। आई सैल्यूट। तो आप कुछ गर्ल्स या महिलाओं को कुछ मैसेज देना चाहेंगी? मैंने तो पूरी कहानी सुना दी, अब क्या मैसेज दूं? इसमें से जो भी किसी को अच्छा लगे तो लर्न करे, आपकी पूरी स्टोरी ही मैसेज है। तो लड़कियां होने के मतलब वी शुड नॉट फील। मैं अभी आते हैं जीटीज ग्रेजुएट इंजीनियर्स एंड एमबीए ग्रेजुएट्स वगैरह लड़कियां जो आती हैं, तो मैं उनको यही बोलती हूँ कि डोंट फील प्रिविलेज टू होल्ड समबडीज हैंड। कि हमको होल्ड करने की जरूरत पड़ती है, माउंटेनियरिंग तो टीम वर्क है, हमको किसी की मदद चाहिए, बट फर्स्ट यू गिव योर 100%। आप 100% दो और तब तो मदद की तो जरूरत सबको पड़ती है। ये माउंटेनियरिंग है ही है टीम वर्क। लेकिन यही सोच के कि नहीं, मैं तो 40 लड़कों के बीच में हम 3 लड़कियां हैं, हम तो वीक हैं, तो यू डोंट कंसीडर योरसेल्फ यू वीक, फ्रेजाइल या टिमिड। यू गिव योर 100%। कोई स्टेप्स है, कहीं खड़ी चढ़ाई है, पहले खुद कोशिश करो ना। हम भी आपके साथ में हैं। अब पहले से आप किसी का हाथ पकड़ करके आप चढ़ना मत करो। कि अब सेल्फ बिलीफ होना बहुत जरूरी है। ये सब सोच में है, वरना क्या है, पहाड़ तो डिफरेंशिएट नहीं करता है। ये हम करते हैं क्योंकि हमको मालूम है हम औरत है। हाँ, वो बात अलग है, हमको कंडीशन ऐसा किया गया, हमको शुरू से अपॉर्चुनिटी नहीं दिया गया जैसे टफ बनने का और ये करने का। तो लेकिन ये है कि पहाड़ तो सबके लिए वही है। आप अंदर में आप स्ट्रॉन्ग सोच है, करेज है, कॉन्फिडेंस है, रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, तो क्या है, पहाड़ सबके लिए वही है। लड़के भी तो टिमिड होते हैं, फ्रेजाइल होते हैं, कावर्ड होते हैं, तो सब हो सकते हैं। तो पहले से आपको सोच के न जाए कि सोचें कि नहीं हम लड़कियां हैं बस। तो सेल्फ बिलीफ होना बहुत जरूरी है। yes. अपने पर विश्वास करें और निकले और एंजॉय करें। जिंदगी बहुत छोटी है, बस जो मन करे। और so dare to dream, believe in yourself and think that the sky is the limit. Oh yes, absolutely. तो हमारे लिए मैम आप, you are a symbol of courage, bravery, strength. तो बचेंद्री पाल जी किस चीज से डरती हैं? किस चीज से डरती हूँ? मैं अकेली रहने से। अकेले रहना ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और भी बहुत कुछ होंगे जिसे डर लगता है, अब याद नहीं होता। नहीं, कोई बात नहीं। और दूसरी बात, डर लगता है अभी कैमरा वैमरा, ये इससे मैं अभी बहुत दूर, मुझे बिल्कुल अब पसंद नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। पीस, शांति, सुकून, नेचर और वो सब। और लेकिन ये जो भीड़ भड़ाका पब्लिक इवेंट्स में, अब मैंने अपने को बहुत दूर कुछ दिन पहले कौन बनेगा करोड़पति में अरुणिमा सिन्हा का था, और उनके कौन बनेगा करोड़पति की टीम मुझे अप्रोच किया, हम आते हैं, आपका थोड़ा क्लिप लेते हैं। मैंने हाथ जोड़ के बोला बस मैं अब उन सब चीजों से दूर हूँ, अब ना मुझे ये एक्साइट करती है ना कुछ होता है। अब तो ये सोच के साथ जी रही हूँ कि ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। तो अभी करंटली आप किसी टीम को ट्रेन कर रही हैं या आप किस प्रोजेक्ट पे अभी आप काम कर रही हैं? टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन में अभी भी मेंटर हूँ। ओके। और अभी रिसेंटली हमने एक ट्रिपल पास चैलेंज करके आए थे हम लोग, 3 पास क्रॉस करके, और कब अक्टूबर में 20 डेज का था टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन का, और वो करके आए हम लोग। और एक बहुत ही बढ़िया अभी मैं कुछ प्लान कर रही हूँ फॉर विमेन। ओके। कल मैं दिल्ली में, परसों में किरण रिजिजू जी से भी मिली थी,
और उनको अपना प्लान बताया एंड यू वाज सो हैप्पी और बोला क्या सोच है, बहुत अच्छी सोच है। वो मैं Wow. अभी एक ट्रांस हिमालय करने वाली हूँ, women who are above 50 and 60। Oh, lovely. और लोगों को बताना चाहती हूँ कि भाई 50 साल के बाद भी एक नया सपना देखो और आगे बढ़ो। 60 साल के बाद भी हम बहुत कुछ कर सकते कर हैं। सकते हैं। ऐसे नहीं कि 50-60 साल के बाद सोचे हैं बस अब तो जिंदगी जी लिया। जी ली। हम एक नई जिंदगी जी सकते हैं। तो ये हम मई से हम शुरू करेंगे और ये करीब 5 महीने का होगा। अरुणाचल से और काराकोरम पास तक का जर्नी है ये, करीब 5 महीने का। एंड पैदल चलते रहेंगे और उसमें सारी जो भी महिलाएं हैं 8-10 वो सब 50 साल से ऊपर की हैं। वेरी नाइस, सुन के ही अच्छा लगा बहुत। थैंक यू, थैंक यू। आपने मैम इतना सब हासिल किया है, इतना रिकग्निशन, आपने इतने इतने अचीवमेंट्स है आपके पास। एनी रिग्रेट्स, एनी अनफुलफिल्ड ड्रीम्स? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। ऐसा ऐसा तो बहुत कुछ है। मैं तो ये सोचती हूँ कि एक लाइफ जितना मैंने किया है, एक के बाद एक लगातार छोटे बड़े करती रही हूँ, तो उससे मुझे यही लगता है कि क्या है, एक जिंदगी कितनी छोटी है, अभी कितना कुछ करना था। ये चीज हमेशा रहता है कि एक जिंदगी एवरेज एज 100 ईयर्स होना चाहिए लोगों का, और तब ताकि कुछ और भी कुछ करने का। तो ये होता है कि एक लाइफ बहुत छोटी है, बहुत कुछ करना है। मैम आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत ज्यादा एंजॉय किया ये कॉन्वर्सेशन, एंड इट्स सो इंस्पायरिंग। आप इतनी इंस्पायरिंग और मोटिवेटिंग है। आपने लीडरशिप के बारे में हमें बताया, नेचर से हम क्या सीख सकते हैं, बचपन की आपकी कहानियां, जमशेदपुर की किस्से, बहुत बहुत एंजॉय किया मैंने। एंड आई एम फीलिंग सो इंस्पायर्ड कि जैसे कहते हैं ना, दिल्ली दूर नहीं, वैसे मुझे लग रहा है माउंट एवरेस्ट भी ज्यादा दूर नहीं है, शायद मैं भी कर पाऊँ। एंड आई रियली आई रियली होप जो हमारे दर्शक हैं उनमें से जमशेदपुर से वी हैव अ लॉट मोर माउंट एवरेस्ट क्लाइंबर्स एज वेल। एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस एंड ऑल द वेरी बेस्ट। कितने लोग जुड़े हैं इसमें, रूपा जी आप बताएं, कितने लोग जुड़े थे? जमशेदपुर से भी है अभी कोई इसमें? तो हाँ मैम, ये हमने जो शुरू किया है ये हम जमशेदपुर के ही हैं। अभी इस वीडियो कॉन्फ्रेंस ये जूम में वो भी जुड़े हैं, जमशेदपुर से भी हैं अभी? जी अभी ये हम टेलीकास्ट करेंगे तो सारे जो देखने दर्शक हैं वो सारे जमशेदपुर के ही मतलब या तो वहाँ उनका जन्म हुआ हो या वो यहाँ वहाँ रह रहे हो, कुछ ना कुछ। तो इस ग्रुप को एक बार हिमालय में लेके आइए, ट्रैक में, नॉट वेरी हाई, नॉट एवरेज और नॉट वेरी हाई पीक्स, बट मेडोज में, जहाँ पे ट्री लाइन है, मेडोज है, वहां पे एक कभी प्लान करिए, ये टीम को लेके आइए। This sounds very interesting. Yeah, and everyone so you can happy to hear have. Bachendripal ma'am herself is making that offer, and we should all take that up. It will be such a fascinating experience, and I am for sure in it. Okay, I will look forward. मैं जरूर इंतजार करूंगी. Thank you so much. Thank you so much for being with us, and all the very best to you. Thank you. Same to you. So much. That was such an inspiring conversation, isn't it? But for now, let's go back to Rajdeep, who is waiting for us with some more soul-stirring music. Okay, now let's have a little fun session. Okay. Let's do a rapid-fire song session. So I'm going to throw things at you. I'm going to give you clues, and you have to immediately sing a song based on that clue. Just one line. That's enough. Well, that's interesting. I'm waiting for the clues. Let's start. Okay. Ready? Okay, ready. Chalo. 3, 2, 1, go. That's what you say, right? Right. 3, 2, 1, go. Ga se gana. Ga se gana. It sounds like Antakshari. गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मंजिल, कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये. Okay, nice. Rajesh Khanna song. Rajesh Khanna song. जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए, कभी ये रुलाए. A song which is Disco Number. Disco number, a lot of songs. It's the time to disco. कौन मिले देखो किसको. It's the time to disco.
What about a song with the word girl in it? Girl in it, like Hindi song with the word girl in it. लड़की in it. एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे. Then there are a lot of जैसे in that. Right. And then we have then there's also Hindi songs with girl in it. I think my desi girl, girl. तुमका Right. लगा के. Songs are at your at the tip of your tongue. Huh? Now let me see whether you get this one, because this is Okay. way before your time. So, Okay. combination of O.P. Nayyar's music and Dilip Kumar on screen. O.P. Nayyar and Dilip Kumar. Oh my God. Two, tick tick three. I'm. It's coming to me. It's coming. Wait. I don't think there are many movies. Just that one. Dilip Kumar. उड़े जब जब जुल्फें तेरी, उड़े जब जब जुल्फें तेरी, कवारियों का दिल मचले, कवारियों Very का nice. दिल मचले, जिंद मेरी. Nice, nice, nice. That Good. This is now chalo. this is a song of yesteryears, and you got it really good. Yeah. I just came to my mind. A song which captures the essence of Jamshedpur for you. Song which captures the essence of Jamshedpur. कोई कहे कहता रहे कितना भी हमको दीवाना, हम लोगों की ठोकर में है ये जमाना, Right, ओ right. हम है नए अंदाज क्यों हो पुराना. Nice. This was fun. हम है नए. We are all like, Yes. we are progressing, and Jamshedpur has become, as we know, it's a hub of a lot of stars, a lot of famous personalities. So we have Absolutely. always been towards innovation and towards new stuff. So हम है नए अंदाज क्यों हो पुराना. Okay. So from this peppy number, we move to your next one, which is also a peppy one. So let's start. Yeah, you're right. That's a peppy number, and we'll just directly go into the song, and then we'll talk about the details. Sure. जो तेरी खातिर तड़पे पहले से ही, क्या उसे तड़पाना हो जालिमा, हो जालिमा. जो तेरे इश्क में बहका पहले से ही, क्या उसे बहकाना हो जालिमा, हो जालिमा. आंखें मरहबा, बातें मरहबा, मैं 100 मरतबा दीवाना हुआ, मेरा ना रहा जब से दिल मेरा, तेरे हुस्न का निशाना हुआ. जिसकी हर धड़कन तू हो, ऐसे दिल को क्या धड़काना, ओ जालिमा, ओ जालिमा. जो तेरी खातिर तड़पे पहले से ही, क्या उसे तड़पाना, ओ जालिमा, ओ जालिमा. सांसों में तेरी नजदीकियों का इत्र तू घोल दे, घोल दे. मैं ही क्यों इश्क जाहिर करूं, तू भी कभी बोल दे, बोल दे. लेके जान ही जाएगा मेरी, कातिल हर तेरा बहाना हुआ. तुझसे ही शुरू, तुझ पे ही खत्म, मेरे इश्क का फसाना हुआ. तू शम्मा है तो याद रखना, मैं भी हूँ परवाना, ओ जालिमा, ओ जालिमा. ख्वाब है तू, नींद हूँ मैं, दोनों मिले
बात बने, रोज यही मांगू दुआ तेरी मेरी, बात बने, बात बने। मैं रंग शरबतों का, तुम मीठे घाट का पानी, मैं रंग शरबतों का, तुम मीठे घाट का पानी, मुझे खुद में घोल दे तो मेरे यार बात बन जानी। रंग शरबतों का, तुम मीठे घाट का पानी, मैं रंग शरबतों का, तुम मीठे घाट का पानी। मैंने तो धीरे से ख्वाबों के धागे से बांधा है रात को तेरे, मैं ना जहाँ चाहूँ ना आसमां चाहूँ, आजा हिस्से में तू मेरे। तू एक मुसाफिर है, मैं कैसे कोई नादानी, तू एक मुसाफिर है, मैं जैसे कोई नादानी, मुझे खुद में घोल दे तो मेरे यार बात बन जानी। रंग शरबतों का, तू मीठे घाट का पानी, मैं रंग शरबतों का, तू मीठे घाट का पानी, मीठे घाट का पानी, मीठे घाट का पानी। Wow, बहुत मजा आया. This was great fun. I love such kind of songs. Thank you, thank you. Wonderful, wonderful. So tell me, in maybe a word or a sentence in brief, what does music mean to you? What does music mean to me? It means a lot to me. Like, it means everything to me. Actually, if in one sentence, it means everything to me. But if you ask me in brief, like, it has different definitions. Like, all the definitions come together. Like, it means passion for me. It means my love. It gives me a spiritual connect. It gives me peace. It gives me like everything. So everything which I can, which a person can, desire for, my all desires end up into music. Like, if I can sing well, if I can, do my stuff, if I can pick up new songs, if I can, improve every day, make myself a better musician every day, a better singer every day. That's all I want. So that's all my desires. Okay, That's nice. that's what music means to me. So with that, I think you're going to sing some ghazals for us. Yeah, sure, definitely. So I feel ghazal is one genre where we have not explored a lot of people. Like, even for Mehdi Hasan, we know a few songs which he had sung. For example, the one I sang, Gulo Mein Rang Bhare, or Ranjish Hi Sahi, or Rafta Rafta. These are a few songs we know about Mehdi Hasan. But there are a lot of beautiful songs which, we don't have You don't. much That's idea true. about. And I am guilty. I'm guilty of that too. No, that's not a problem. It's like some songs are not being promoted as much, so that's why we don't get to listen to them. But when I started exploring this song, Guncha e Shauq. It's like a garden of my desires. So, like, Urdu poetry can be so beautiful, and how beautifully he had sung and how beautifully he had composed it. And with that, I'll be singing another song by Shafqat Amanat Ali. I did two mashups with Mehdi Hasan and Shafqat Amanat Ali, but you'll love it. You'll like it. I'm This sure. is a very I'm famous sure. song by Shafqat Amanat Ali. I'm So sure. let that song be a surprise, and Okay. let's go on with Guncha e Shauq. Sure. दास्ताने लबे आलम पर, दास्ताने हैं लबे आलम
दास्ताने दास्ताने लबे आलम पर दास्ताने लबे आलम पर दास्ताने लबे आलम पर हम तो चुपचाप गए थे मिलने, हम तो चुपचाप गए थे मिलने, फिर तुझे याद किया है दिल ने, गुंजाए शौक लगा है खिलने, गुंजाए शौक लगा है खिलने। तड़पना मेरा हंसना तेरा, तड़पना मेरा हंसना तेरा, नींदें मेरी सपना तेरा, पलकों को ऐसे पलकों से छू ले कि जब दिल मिले तो मंजिल मिले, आँखों के सागर होठों के सागर, आँखों के सागर होठों के सागर, ले डूबे हमें, ले डूबे हमें, पलकों को ऐसे पलकों से छू ले कि जब दिल मिले तो मंजिल मिले, आँखों के सागर होठों के सागर, आँखों के सागर होठों के सागर, आँखों के सागर। Beautiful, beautiful. This was Thank you. so Thank you so much. melodious and very, very nice, Rajdeep. Uh, Words fail me, honestly. It is really, you are so gifted, and it's so nice to have you here. No, it's so nice to talk to you about things and sing, a few songs like these, which I don't usually get time to sing or get the proper audience to present in front of. Anyway, so So tell me, yeah, again. when was the moment when you knew in your heart that this is what you want to do for the rest of your life? This moment, that struck me for the first time. It struck me when I was in class 12. I was I was prepping for my board exams. And then, I was planning to do engineering after 12th.
After Okay. 10th, I took a pure science. Yeah, I took pure science after 10th, and then I wanted to do engineering. Then those 2 years, 11 and 12, I realized that well, that's not my cup of tea. And but I was meaning to tell it to my parents, but I could not because Okay. I decided that somehow. But then it took me some time, and then I built up courage, and then I told my parents that well, you know, engineering, I don't think I'll be able to do this one. I'll be able to go into this field. So, I want to do something else. I told my parents, to my mom and dad, they told me that, what do you want to do? I told, I want to learn music. I want to study music. And they are like, what's your scope? What would you do if you have a degree in music? And I was like, yeah, I can do a lot of things, but I could not explain to them because half the things I only didn't know Didn't know. that how to proceed, how to go get through with this. Then I liked maths a little, and then I thought that something with just related to maths, but not that difficult. I chose economics honors for my graduation. Okay. So then I shifted. Then I came to Kolkata and started learning from my guru here in Kolkata, Sri Jayanta Sarkar, and I also started pursuing my graduation in economics honors. Economics. And I'll just tell you one thing about that. Like I was the only student in my college for my batch for economics honors. Uh, I did my graduation in economics honors, and by that time I was with a band, and I met a few people, and I made few contacts. After that, the Super Singer show happened, and it happened last year. I got a call from the team that they want to audition me for the show, and I went very casually because before this, I tried a lot of reality shows, but somehow I couldn't get through that door. After which you have the top 18 or the top 20, top 15, the participants with which you start the show. Right. So I just could not get through the door. I went till the grand auditions and all, and then somehow I couldn't Make get it. through. So I was a little disappointed at I that was time. just going to ask you, there must have been a lot of disappointments along the way, but when you Yeah, find your calling, nothing else matters, because then nothing else that's matters. like Right. it's like, yeah, this is what you want to do, and this is what you will do no matter what. So, Exam. So that thing happened. That thing happened when I came for my graduation studies. During those 3 years, then I decided, no, I will finally now start studying music. I completed my graduation, and then I enrolled for masters in music from RBU. okay. So I'm still currently, that degree is still in process. So while I was doing my first year in masters, then I got the call from Super Singer. So I auditioned and I went there, and then we were in the grand audition thing, and it's a great fortune to perform in front of legendary artists, and one of the one of all of our inspiration, Asha Bhosle ma'am. So, and she is a gem of India, and she's, as we call her, Goddess Saraswati. So, and we could we could not imagine that she's sitting in front, just right in front of us, and we are just singing. So when I was on stage, I was shaking. I was so nervous. And we had in the judges panel Kumar Shanu sir, Shan sir, then we had Kavita Krishnamurthy ji, Jeet Ganguly. Uh, so I went for the grand audition. Then Asha ma'am was there. She got me selected. The judges were, again, that was a bit of a drama there. The Okay. judges were a little unhappy, or they were not sure that they want me Right. to get through. But then Asha Bhosle ma'am pressed the button, and she Insisted, said, and no, yeah, okay, they're good. this guy should stay. And then from then my journey started, and then I went through with it and started performing consistently. I started, it became easier for me to perform on the stage, and I Nice. was, I had it's my fortune to perform in front of other legendary artists like Sonu Nigam, Sukhvinder ji. Then one of my most memorable moments was when Hari ji came, Hariharan sir. Hariharan. He's another inspiration for me.
sometimes I think that, you know, winning or losing, that does not matter. Of course. When you get the chance to see these people in front of you, these people that you have thought of, dreamt of, people who are your inspirations, people who are your idols, you see them, and you listen to them singing. He sang a ghazal for me, which is a very rare Mehdi Saab ghazal, and like both are my inspiration. So that thing is happening right in front of me. If you see that episode, that's uploaded in Hotstar, if you see that episode, you'll find me crying. I was crying on stage. So Yes. I cannot imagine that moment. You know, Hariji was singing a ghazal for me. Right I in can front. imagine it must have been so special and so emotional. And you know, It's and the most- validation it's from the Asha most- Bhosle ji, Hariharan ji singing something for you. I mean, amazing. And Amazing. then there was a moment in the finale where Kumar Sanu sir came on the stage, and he had a gift for me. He Oh. he saw me from the beginning till The the entire journey. finals. He had seen the entire journey, so he had a special gift for me. He took out his wristlet. It was a gold wristlet. Took out his Wow. wristlet and, you know, tied it around my arm, wrist, and like I was thinking that, okay, is it true? That was a huge moment, huge moment. So that's how, you know, things have happened. And then after this show, you know, I'm getting a lot of contacts, and a lot of other people have, you know, signed up for. We are talking for movies, for serials, and for everything. So, you know, taking steps now, and Good, good. hopefully you'll see a lot of me on social media as well. I have my page on Facebook. I have my Insta profile, and I'm starting my YouTube channel very soon. So that's just a reminder for everyone again. I'm sure they're all going to check you out for sure. Now I believe you're going to sing something for us as a tribute to Bharat Mata, because we are very close to Republic Day, and I believe you have something uh, for that occasion. Yeah, definitely. I have something for the occasion of Republic Day. But also, let us not forget, today is the birthday of Netaji Subhash Chandra Bose, another of our, you know, great freedom fighter and Absolutely. great personality. So this is a tribute to both Netaji and for our nation, for Republic Day on 26th. So we'll just get into the song. Sure. This song is dedicated to India, our motherland, to everyone, to all the Indians all over the world. Ma tujhe salam. Vande Mataram, Vande Mataram, Vande Mataram, Vande Mataram. यहाँ वहाँ सारा जहाँ देख लिया है, कहीं भी तेरे जैसा कोई नहीं है. ऐसी नहीं 100 दिन दुनिया घुमा है, नहीं कहीं तेरे जैसा कोई नहीं. मैं गया जहाँ भी बस तेरी याद ही जो मेरे साथ थी, मुझको तड़पाती रुलाती. सबसे प्यारी तेरी सूरत, प्यार है बस तेरा प्यार ही. माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम, अम्मा तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम. वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम. तेरे पास ही मैं आ रहा हूँ, अपनी बाहें खोल दे, जोर से मुझको गले लगा ले, मुझ
प्यार दे अम्मा अम्मा तू ही बंदगी है, तू ही मेरी मोहब्बत है, तेरे पैरों में जन्नत है, तू ही दिल तू जा अम्मा अम्मा तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम। वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम। दिल को छू गया. I mean, really, I have goosebumps. And Rajdeep, with that, we come to the end of this most amazing session. I really had a blast, and I'm sure everyone else did too. And you're a phenomenal singer, and we wish you all the very best in this career that you've chosen for yourself. I hope you get a lot of success, recognition, and fame. And with that, we'd like to say bye-bye to you. Yeah, thank you so much. Thank you, and it was a pleasure. It was, wonderful talking to you, and the things we talked about. Actually, the perspectives that I put out, because a lot of people don't think about music, with this timeline. And it was again, soul enchanting session here, and it was great to talk to you, and again, great to be with the people of Jamshedpur and sing in front of them. Okay. Thank you so much, and all the very best. Thank you so much. With that, we come to the end of this episode. Rajdeep's soulful music and the invigorating conversation with Bachendri Pal ma'am has rejuvenated me. And her infectious enthusiasm and josh is a reminder to all of us to bring fitness back into our lives. And then there's the open invitation from ma'am herself to discover the beauty, serenity, and magnitude of the mountains. So let me know what you think of the offer. With that thought, I want to take your leave. Thank you for being here tonight. We really appreciate your presence and your comments. Good night from the entire team of the Jampot Adda. See you real soon.